Good morning, everybody. This is Odisha Adarsh Vidyalaya, Sanmuda, Rairangpur. So, as per your view and as per our teachings, we are in the chapter 3 of class 7 ICT book, and it is the third video for that chapter. In this today's session, we'll start from formatting text. In the last class, the last video, we have completed till find and replace. So today we'll go for the formatting text. Formatting means what? Designing, changing, altering, and this kind of things or arrangements. जितना भी सब या फॉन्ट का स्टाइल मीन्स द फेस. ओके, तो इस प्रकार अनेकों सारे चीज को करने को बोलते हैं फॉर्मेटिंग. ओके, सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. So, to create and design effective document, you need to know how to format a text. तो कैसे कैसे इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे. ठीक है, ये फॉर्मेटिंग, व्हाई वी नीड दिस फॉर्मेटिंग. एक्चुअली दिस attracts the reader, okay, to read and to know the important information very easily. तो इसमें क्या क्या आता है फॉर्मेटिंग में, जैसे कि फॉन्ट साइज चेंज होता है, फॉन्ट कलर चेंज होता है कि नहीं, फिर फॉन्ट फेस चेंज होता है. इस प्रकार देन वी डू द हाईलाइट, वी डू द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन different case is upper capital or small or sentence case. Sentence case में क्या होता है, the first letter of the sentence is capital, then capitalize each word. मतलब क्या, मतलब capitalize first letter of each word है कि नहीं. तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है. फिर उसका अलाइनमेंट होता है. अलाइनमेंट का मतलब क्या, उसका सजावट कहाँ रहेगा, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई. जस्ट लाइक this one we do the formatting. तो कैसे करना दिया जाता है, different steps. Okay, so write down the question. What is the need of formatting text? What is the need of formatting text? Next question, how to change the font size. How to change the font size. तो कैसे करना है, so you have to go to the home tab. Okay, फर्स्ट देखो, मैं आपको पहले से बोला हूँ, whatever you want to do, first you have to select. Okay, first you have to select the text, then क्या करना है, you have to go to the home tab, then the font group है नहीं, font group देखना, उधर एक तो क्या है, font size का एक ऑप्शन है. ओके, font size बॉक्स, तो उसमें साइड में एक तो डाउनवर्ड एरो होगा, उसको आप क्लिक करोगे, so it will go for different font sizes. ओके, उसमें आपको जितना भी चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, so you can also select that one. Okay, or there is a shortcut key also for select and use the keys, just like shift plus closing curly brackets or square bracket for increasing, okay, and opening for decreasing. For the decreasing and opening, you can use that one, the shortcuts. Otherwise, these things are needed.
And the next part is that how to change the font. Same thing, first select, then you have to go to the font face. Okay, the font face, and you can select uh, any font फेस है नहीं. इसमें और एक क्या फ़ायदा है, जो फॉन्ट स्टाइल है जिसके ऊपर आप अपना माउस पॉइंटर मूव करोगे ऑटोमेटिकली एट द बैकग्राउंड इट विल शो यू इट्स इट्स रेप्लिका. मतलब इसका प्रतिबिंब वो कैसे दिखेगा, दैट विल शो एट द बैकग्राउंड. ओके, एंड so in the background, after that, those which font you want to select, just click on that, it will applicable to that selected text. Understood? Then come to the font color. कैसे करना है, same thing, home tab, then font group. Actually it will change the text color or the font color. First select whatever the operation you have to do on the text, you have to select first. क्या करना, देयर इज ए सिंबल ए एंड अंडरलाइन में एक तो रेक्टेंगल बॉक्स होगा, उसको साइड में एक तो एरो है, उसमें क्लिक करोगे तो एक पैलेट या पेन आ जाएगा. सिलेक्ट एनी कलर दैट यू वांट टू चूज, दैट विल बी एप्लीकेबल टू योर फॉन्ट. देन कम टू हाईलाइट द टेक्स्ट. हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग इजीली जान पाए. उसके टेक्स्ट के पीछे एक तो बैकग्राउंड आ जाएगा. जनरली वी यूज द येलो. ओके, गो टू दैट स्मॉल ए बी, उसके नीचे रेक्टेंगल होगा, उसको साइड में क्या होगा, डाउन एरो, उसमें क्लिक करोगे तो ए पेन विल कम एंड सिलेक्ट द एनी कलर दैट यू वांट टू हाईलाइट. देन कम टू द यूजिंग ऑफ द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. है नहीं, बोल्ड किस लिए करते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली दिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड करते हैं या इटैलिक करते हैं या अलग करते हैं. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स दिस थिंग्स आर यूज्ड फॉर योर अटेंशन. तो क्या करना है, फर्स्ट सिलेक्ट, देन go to the home tab. In the font group there is B for bold, I for italic, U for underline. तो उसमें क्लिक करने से होगा. The shortcut key for the bold is Control plus B, for italic Control plus I, for underline Control plus U. ठीक है. And so next part is the to change case. Case मतलब क्या, the upper case, lower case मतलब capitalize या स्मॉल दिस थिंग. ओके, आप लिख लिए हो कंटिन्यूसली वर्ड स्मॉल लेटर में, आपको चाहिए कि अभी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो सिलेक्ट दैट वन एंड यूज द सेंटेंस केस. तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, या स्मॉल लेटर में लिख दिया हो उसको कैपिटल करना है तो अपर केस, अपर में लिख दिया स्मॉल करना है तन लोअर केस. सो यू कैन चूज. देन काउंट द अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या, उसका मार्जिन सेट करते हो, कहाँ लेफ्ट साइड आएगा या सेंटर में आएगा कि राइट साइड आएगा, या दोनों साइड में समान रहेगा. देयर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. वन इज द सेंटर अलाइनमेंट, देन लेफ्ट अलाइनमेंट, देन राइट अलाइनमेंट, देन जस्टिफाई. तो पहले सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन करने के बाद सो यू हैव टू चूज the alignment option in the paragraph group. In the paragraph group, home tab, paragraph group, alignment option का आप चूज करना है. लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, देन राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई. तो जस्टिफाई के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे. ठीक है, कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई. ठीक है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल एंड राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई. ठीक है. सो these are the different alignments and their shortcuts. So I think you have understood this one. So write down the question.
Write down the steps to change the font color. Write down the steps to change the font color. Next question, how to change the font style? How to change the font style? Okay. Then write down the next question, how to highlight the text? How to highlight the text? ठीक है. Next part is that how to use bold, italic and underline commands. How to use bold, italic and underline command. Next question, how to use change text case. How to use change text case. Next question, how many types of alignment are there? Explain them. How many types of alignments are there? And explain them. Then come to page layout. लेआउट का मतलब क्या, कैसे वो बिछाया जाता है, मतलब हाउ दैट विल अपीयर. हाउ दैट विल अपीयर. We'll think about the margins of the page, the size of the page, okay, different kinds. So page setup, तो क्या करते हैं इसके, पेज सेटअप करते हैं. तो हाउ टू सेट मार्जिन, ओके, टू सेट मार्जिन we have to follow some steps such as, क्या करते हैं, on the page layout tab in the page setup group click the margin. क्या करोगे, क्लिक द मार्जिन, क्लिक ऑन द कस्टम मार्जिन. कस्टम मतलब कि अपने हिसाब से हम लोग उसको मार्जिन सेटअप कर सकते हैं. दैट वन इज द कस्टम मार्जिन. सो इट इज द कस्टम मार्जिन. देन in the gutter box, in the gutter box enter the width, कितना चौड़ा होगा, आगे नहीं, width for the gutter मतलब साइड जो मार्जिन का ये सब कितना चौड़ा होगा, मार्जिन वाला. इन द गटर पोजिशन बॉक्स क्लिक द लेफ्ट और टॉप. ओके. इन ओरिएंटेशन मतलब क्या, ये लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा. देखो आप किसी चीज को सीधा रखते हो, दैट वन इज द पोर्ट्रेट. इसे सपोज एक A4 साइज पेपर को आप सीधा रखते हो, आगे नहीं, जिसका कम वाला पोर्शन ऊपर होगा और ज़्यादा लेंथ वाला पोर्शन साइड में होगा. इट इज़ अ पोर्ट्रेट. उसको घुमा दिए, आगे नहीं, ज़्यादा लेंथ वाला पार्ट नीचे रहा, तो दैट वन इज द लैंडस्केप. ठीक है. सो टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप, चेंजिंग द पेज ओरिएंटेशन. ठीक है. Click either portrait or landscape to change the page orientation. Then you can set the border of the page. क्या करना है आपको, and to insert the page border, navigate to page layout, then click on the page border, click on the page border and select any page border that you want. Then click on OK. Then come to page color. तो क्या करेंगे हम लोग, go to the page layout tab, then choose the page color from the drop down. drop down मतलब जो एरो जो होता है, डाउन एरो, drop down, and in the page background selection select any color that you want. Then to see the more settings, click on the page color drop down and choose the fill effect. okay, then come to watermark. ये watermark होता क्या है, आप लोग देखिए होगी कि बहुत सारा पेज में एक बैकग्राउंड में स्कूल का लोगो होगा या कुछ लिखावट होगा, दैट वन इज नोन एज द वाटरमार्क. ठीक है. मतलब मेन टेक्स्ट दूसरा कुछ होगा लेकिन उसके पेज में पीछे तरफ
हल्का सा कुछ होता है, दैट वन इज द वाटरमार्क. ओके, on the page layout tab, the page background group, choose the watermark and choose the custom watermark. कस्टम वाटरमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हो, एनी इमेज और खुद का कुछ टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो. देन अगर पिक्चर सिलेक्शन करना है तो सिलेक्ट एनी पिक्चर दैट वन इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, और सिलेक्ट एनी टेक्स्ट भी आप उसमें डाल सकते हो. देन यूज ऑफ द कट कॉपी पेस्ट, ऑलरेडी यू हैव read about something. कट मीन्स किसी चीज को रिमूव करके दूसरी जगह में पेस्ट करना. दैट पार्ट विल बी टोटली शिफ्टेड एंड कॉपी में उसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा. एंड सेम थिंग, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट, then use of the in the clipboard section, in the home tab clipboard section, so there are a different option for the cut, copy, paste. Okay, so you can select. The shortcut key is the Control S for cut, Control C for copy, and for paste Control V. तो कैसे करना है, पहले सिलेक्शन करो, फिर जो ऑपरेशन करना है उसको क्लिक करो, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है उसी लोकेशन को जाके उसी कमांड इस्तेमाल करो, हो गया, काम खत्म, पैसा आया. ठीक है. देन कम टू सेविंग डॉक्यूमेंट. हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट. सेव क्यों करना है, फॉर द फ्यूचर यूज, फॉर द फ्यूचर यूज वी डू द सेविंग. ओके, तो क्या करना है, काम खत्म कर लिए, फिर क्लिक ऑन द फाइल, देन सेव. तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ये पूछेगा लोकेशन, किस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो, तो उस लोकेशन में जाके उसका नाम दे के आप सेव कर सकते हो. द शॉर्टकट की इज द कंट्रोल एस. आप जब बीच बीच में कंट्रोल एस दबाना होता है, नहीं तो सेव करंट चला जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो दैट फाइल विल बी लॉस्ट, आपका काम खराब हो जाएगा. देन कम टू फॉन्ट स्टाइल्स, साइज एंड कलर. आपका फॉन्ट साइज कैसे होगा, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट वन. Select the text, then click on the font style included in the font group of the ribbon. Okay, then select text and right click and display the tools. Okay, insertion of the different shapes. तो क्या करोगे, go to the insert tab, then go to the shapes. तो आपको अलग अलग प्रकार का शेप आएगा. शेप मतलब आकृति, आगे नहीं, तो जो आपको चाहिए that can be included. उसमें क्लिक करके ला करके कहाँ पे, ये आपका मेन सीट में वर्किंग एरिया में उसको आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे, आगे नहीं, खींच दोगे ऐसे तो आ जाएगा अपना साइज में. कम टू सुपर स्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट. ये क्या है, सुपर मतलब जो ऊपर में से कि x टू द पावर, इट इज द सुपर, है नहीं, फिर x नीचे 2 मतलब इट इज सब. ठीक है, बोलते हैं सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. ऐसे कि द सब्सक्रिप्ट में क्या लिखे, H2O, जो नीचे 2 है कि नहीं, इट इज अ सब्सक्रिप्ट. एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर yq, q मतलब 3, that one is the superscript that can be added. तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट सिलेक्ट जिसको आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो तो उसको पहले सिलेक्शन करना होगा. देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप, एंड फॉन्ट ग्रुप लिखा है कि नहीं, x नीचे 2 एंड x स्क्वायर, x स्क्वायर करने से वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा और x2 करने से वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा. एंड द शॉर्टकट की फॉर द सुपरस्क्रिप्ट इज कंट्रोल प्लस इक्वल टू सिंबल, और सबस्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल टू, तो उसके हिसाब से ही काम देगा. ठीक है. कम टू चेंज केस, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द चेंज केस सिलेक्शन. गो टू द कैपिटल है, स्मॉल है, उसमें ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो एनी केस यू कैन अप्लाई. देन इंसर्टिंग द टेबल, आपको टेबल फॉर्मेट में कुछ लिखना होगा तो क्या करोगे, गो टू द इंसर्ट, देन टेबल्स. ये आपको एक बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो जितना आपको रो चाहिए और कॉलम चाहिए दैट कैन बी इंक्लूडेड. और देयर इज ए
ऑप्शन फॉर द ड्रॉ टेबल, तो अपने हिसाब से आप उसमें नंबर ऑफ रो कॉलम दे सकते हो। ओके, देन क्या करोगे, पहले से कुछ आप लिखे हो टेक्स्ट में, उसको टेबल करना चाहते हो तो क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन, देन गो टू द इंसर्ट, ओके, क्लिक ऑन द टेबल कमांड, देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये टेबल बन के आपका आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो ये डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या टेक्स्ट एक टेबल में आपका आ जाएगा। आ गया ना, ठीक है। तो ये आपको, ये किस प्रकार से आपको टेबल करेगा, जैसे कि इसमें देखो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सेपरेट द टेक्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से कर सकते हो, कॉमा के हिसाब से, या टैब के हिसाब से, या दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से। सो जनरली वी यूज द टैब, टैब मतलब जो गैप होगा दैट पार्ट विल बी सेपरेटेड। क्लिक ऑन ओके, देखो ये ऑटोमेटिकल टेबल में आ गया ना। जहाँ पे ये आपका कर्सर दिखा रहा है दैट मींस द इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। देन राइट क्लिक द माउस, माउस अपीयर, देन इंसर्ट रोज अबव। अगर आपको सेम रो के ऊपर में एक तो एक्स्ट्रा रो ऐड करना है तो क्या करोगे, राइट क्लिक किए, फिर इंसर्ट रो अबव, तो अपर साइड में देखिए आप फिगर 3.42 में एक रो ऐड हो गया, उसमें आप दूसरा कुछ डाल सकते हो। उसी प्रकार बिलो करने से उसका नीचे एक तो आ जाएगा, आगे नहीं, तो नीचे भी कर सकते हो। उसी प्रकार आप राइट में भी कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम राइट या लेफ्ट, जो करना है दैट विल बी एडेड। अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे, उसी में जाके राइट क्लिक करो, डिलीट सेल, तो डिलीट हो जाएगा सिलेक्ट। एंटायर रो भी आप डिलीट कर सकते हो, तो ये एंटायर कॉलम क्या दिया, डिलीट सेल, तो डिलीट एंटायर रो, तो पूरा रो चेंज हो जाएगा, या कॉलम भी आपका डिलीट हो जा सकता है। अंडरस्टूड, दैट द केस। तो then come to अप्लाई टेबल स्टाइल। टू अप्लाई टेबल स्टाइल, अलग अलग प्रकार का हम लोग स्टाइल वी कैन insert there, okay, we can insert the table. So first you have to select the table, then go to the design, then table style, आपको अनेकों सारे डिजाइन आएगा at that, and there is a drop down list, so you can apply any of the design that you want. Okay, then come to the change table option, तो क्या करना है, they are having the 6 option, header row, total row, banded rows, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इस प्रकार banded कॉलम्स थोड़ा बेंड हो गया है तो अलग प्रकार का है। देन क्लिक द टेबल डिजाइन टेब, क्लिक ऑन द टेबल, एनी वन द टेबल, देन डिजाइन टेब विल अपीयर। देन डिजाइन टेब में क्या करोगे, चेक क्लिक करो, जितना सारा ऑप्शन है देखो फिगर 3.49 में, तो जो जो आपको चाहिए दैट कैन बी सिलेक्टेड हियर, ओके। तो उसी स्टाइल में ये आ जाएगा, चेक करो या अनचेक करो, चेक का मतलब टिक करना है, तो दैट कैन बी एप्लीकेबल टू योर टेबल, ओके। आप बॉर्डर भी इसमें सेट कर सकते हो, कैसे करोगे, फर्स्ट सिलेक्ट पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर सेल, देन गो टू द डिजाइन, देन लाइन स्टाइल, लाइन वेट आप उसमें कर सकते हो, कहाँ पे, ठीक है। देन पेन कलर, देन क्लिक ऑन द बॉर्डर्स इन द ड्रॉप डाउन एरो, देन सिलेक्ट एनी बॉर्डर टाइप, सिलेक्ट एनी बॉर्डर टाइप, ये सब डिजाइन में है, ठीक है।
ये border group में है. Okay, the border will change to here. मोटा हो गया एक तो रेड कलर का आ रहा है कि नहीं. This is the border of the particular selected cells. Then modifying a table using the layout tab. When you select a table in WAR 2010, design and layout tabs appear under table tools. Okay. So in this case, this is the then design and layout tabs will appear under the table tools on the ribbon. Using the command on the layout tab, you can make variety of modification to the table. Okay, click the buttons in the interactive below to the learn about different ways you can modify a table with the layout tab. Okay, this is the for today's this video will wind up. Write on the question. Write on the question how to set borders in a table. How to set borders in a table. Okay. Next question, how to apply table style. How to apply table style. Then how to insert a row or a column in an existing table. Then come to how to convert existing text to a table. How to convert existing text to a table. The next question, how to insert a table. How to insert a table. Write down, differentiate between subscript and superscript. Differentiate between subscript and superscript. Explain with their steps. How to insert different kinds of shapes. How to insert different kinds of shapes. What is watermark and how to use it. What is watermark and how to use it. Write the use of cut, copy and paste. Write the use of cut, copy and paste. How to use page border. How to use page border. How many types of orientation are there? How many types of page orientation are there? Okay, how many types of page orientation there? This much. Thank you.